Okay, FY BCom NEP semester 1 we are doing accountancy and financial management. Financial management and accountancy बहुत गड़बड़ है रे बाबा, नाम अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम. तो चैप्टर नंबर 3 which we are going to do is introduction to accounting standard. We have already seen कि हाँ बाबा accounting standard जरूरी है. Why? To set some rules and regulations, to set some standards, right? Because accounting standards are providing you the guidelines of maintaining the accounts. We have seen what is bookkeeping, we have seen what is auditing, we have seen what is accounting, correct? Let us have a glance on accounting standard. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कहाँ पे हुए हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं. ओके, दे आर मेड बाय द फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग यूके, यूएस एंड मेनी अदर. कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय ऑल द कंट्रीज, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं आज की तारीख में, तो ऑब्वियसली एवरीवन्स रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी. स्पेशली अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, बराबर है, ICAI. वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च करते हैं या वो भी सेट करते हैं, जिनका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. देखेंगे अगर मौका मिला तो कहीं पे हम लोग यहीं पे भी देख लेंगे, वरना आप लोग जाके MCOM की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सिर्फ चैनल पे सर्च मारना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको मिल जाएगा. ओके, IFRS आप लोग मारोगे तो मिल जाएगा, उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मारो, IFRS मारो, IFRS की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है. डन, तो उसमें आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे. स्पेशली जो CA के बच्चे हैं, if you want to try your luck with our videos, you can go and try that. Okay, they are in detail itself, so not a big deal as such, समझ में आ जाएगा. So concept, a term accounting standard is defined as a written statement issued from time to time. So if objectives come that accounting standards are oral in nature, true or false? False. Why? Because they have said written statements from time to time by the institution of the accounting profession or institution in which there is sufficient involvement and which are established expressly for this purpose. Okay, such accounting institutions or bodies are currently found in many countries. For example, accounting standard board इंडिया का अपना है ASB, बराबर है, ASBI भी बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया. फाइनेंशियल बोर्ड स्टैंडर्ड बोर्ड US का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी UK की है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कनाडा की है, एंड सो ऑन. Accounting standards mainly deal with the financial measurement and disclosure used in producing a set of fairly presented financial statements. Right? Fairly, मैं fairly बोल दिया, हाँ. In this respect, accounting standards can be thought of as a system of measurement and disclosure. Correct? They also draw the boundaries, क्योंकि मैंने क्या कहा, limit, rules, regulations. तो उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, बराबर है, आपको वो देखना पड़ता है, बराबर. एक ही मिनट. हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों? टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एट प्रेजेंट इन यूज इन इंडिया. इंडिया की बात करो तो यू आर हैविंग सिंगल एंट्री, यू आर हैविंग डबल एंट्री, यू आर हैविंग गुड़ी पाड़वा टू गुड़ी पाड़वा ईयर, यू आर हैविंग Diwali to Diwali wala New Year, you are having calendar year, you are having financial year from 1st April to 31st March. तो एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है. हाँ, बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां भी है जो रिलीजियस ईयर फॉलो करती है. To standardize the diverse accounting policies and practices with the view to eliminate to extent possible and non-comparability of financial statement and to add the reliability to the financial statements. Benefit क्या है? Norms of accounting policies एक अच्छा बन गया. Harmonize the accounting policies, बराबर है. Presentation of fair financial statements, आपके स्टेटमेंट अच्छे और स्टैंडर्डाइज बनेंगे. प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ऐसे ही बना के आसमान से गिरा खजूर में लटका. इज इट सो? नो. व्हाई? सी, देयर इज ऑलवेज सम प्रॉब्लम, बराबर. कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम पे तू मैं हुई, वापस ना हो उसके लिए आपने एक लिमिट लगा दिया है. लॉजिकल, राइट? So there is some problem, because of that some problem there is an argument, because of that argument there are various solutions, and then the specific applicable solution is chosen and that becomes your standard. तो देखो, broadly the following procedure will be adopted for formulating accounting standard. आपके हर बिजनेस के हिसाब से आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने वाले हो.
to determine the broad areas in which accounting standards need to be formulated and priority in regard to the selection thereof, to hold a dialogue with the representative of government, public sector undertakings, industry and other industry organizations for ascertaining their views. On the basis of the work of the study groups and dialogue with the representatives to prepare and issue the exposure draft of the proposed standard for comment by members of the institute and public at large, to finalize the draft of the proposed standard after taking into consideration the comments received, to submit the final draft of the proposed standard to the Council of Institute. This Council of the Institute will consider the final draft of the proposed standard and if found necessary modify the same. डायरेक्टली रूल बनता नहीं है, मैंने कहा ना बेस्ट ऑप्शन, बराबर है. In consultation with the accounting standard boards, the accounting standard or the relevant subject will then be issued under the authority of the council. ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर बात किया जाए तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे बने हैं, इंडिया में बने हैं. किसके लिए बने हैं? इंडियंस के लिए बने हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग अलग है. किसने बनाया? मैंने आपको पहले ही कह दिया. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बना रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बराबर है. Indian AS are rules that determine what? That determine how Indian companies prepare the present and present their financial statements. The Indian accounting standards are IFRS converged standard issued by Institute of Chartered Accountant of India. Adopting Indian accounting standard helps companies become more transparent. Obviously, आप globalization के दौर में हो तो your accounting and the international accounting should match to certain extent. बराबर है. कहाँ गया? It helps to comply with the global practices. बराबर. The Indian accounting standard harmonized with IFRS, जो इंटरनेशनल ये जो है स्टैंडर्ड्स जो है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, उसके हिसाब से ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं. मेकिंग इंडियन बिजनेस फैमिलियर विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, they improve the reliability of the company information, enabling appropriate evaluation and decision making. While formulating AS, the endeavor of the ASAI remains to converge with the IFRS. As I said, कि they are in similar with the IFRS. ठीक है? Easy? I hope I'm sounding easy and you people are able to understand. पहली बार डिग्री कॉलेज है, पहली बार ये है, सर होगा कि नहीं होगा? होगा, सब होगा, डोंट वरी. ऑल इज वेल. इधर रखने का और बोलने का ऑल इज वेल. 3 इडियट कब काम आएगा? तभी आएगा. Objectives of accounting standards. Why? To ensure the large-scale activities are properly accounted through continuous disclosure, treatment and reformation. To standardize accounting policies and principles for the country's economy. To provide a unified framework for the preparation of books of accounts and to ensure financial transparency. To ensure that all institutions and governmental bodies are accepted globally. बराबर. हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, गैप था, ये सारी चीजें थी, बराबर है. तो उनके अंदर जो खामियां थी, उनके अंदर जो कमियां थी, वो निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए. ओके, यू ऑल कैन जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स बिकॉज हाँ, IFRS मैं यहाँ पे कवर ही नहीं करूंगा. IFRS पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, CS के बच्चों के लिए वो काम आ सकता है. तो IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, क्यों है? तो काम आपका आसान करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए, बराबर, आपके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट होने के लिए, लोगों को समझने के लिए, ये सारी चीजें वहाँ पे है. एंड यू बिकम वन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. बराबर. बेनिफिट्स ऑफ IFRS, ट्रांसपेरेंसी आ गई, बराबर है. एलिमिनेट्स नीड फॉर मल्टीपल रिपोर्टिंग आ गई. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस इजीली होने लगे. सेट्स अ बेंचमार्क, करेक्ट. सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी, एरियाज ऑफ पॉलिसीज कहाँ कहाँ है? तो सारा डेप्रिसिएशन है, पॉलिसीज है, आपका कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग करना है या क्या करना है, बाद में डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करना है, राइट ऑफ जो करते हो आप लोग इंटेंजिबल एसेट्स को, अमोर्टाइजेशन वो कैसे करना है, ये सब कुछ है. फॉरेन करेंसी का रेट कैसे एप्लीकेबल करना है, कहाँ पे एप्लीकेबल करना है, टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स कैसे डील करनी है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कैसे डील करना है, वो सब कुछ इसमें है IFRS में. Okay, purpose of policies. Yes, policies are necessary. बराबर. तो पॉलिसीज ये सब चीजें करती है. पॉलिसीज होगी तो आपके अकाउंट्स बहुत सिस्टमैटिक होंगे,
and your figures revealed by the final accounts will be perfect, and the presentation that you have made will be easy to understand by the users. They are normally known as stakeholders, right? Very good. Okay, जिन्होंने जवाब दिया, very good. लेकिन ये सारी चीजें याद रखो. Okay, disclosure of policies, yes, आप कौन सी accounting policies follow करते हो, you need to disclose in your reports, so that the person using it, the stakeholders, will be at ease while understanding your financial statements and financial reports. Okay, disclosure of change in policy, आप depreciation का original cost method follow कर रहे थे, fixed installment method. 1 लाख का मेरा मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, 10,000 10,000 10,000 10,000, 10 साल में वैल्यू 0. आफ्टर 10 years यू आर फाइंडिंग, नहीं यार ये मशीन तो अच्छी चल रही है और 5 साल चल सकती है. लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि जिसकी वैल्यू 0 हो गई है उसको आप 5 साल कैसे यूज करोगे, राइट? दैट मीन्स उसका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा. वैल्यू चेंज कैसे करेगा? ठीक है, एक काम करते हो, जो अपन ने फिक्स इंस्टॉलमेंट में किया ना, उसको अपन रिड्यूसिंग बैलेंस में डाल देते हैं. यानी पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 9,000, तीसरे साल का 8,100, चौथे साल का 7,290 एंड सो ऑन. डेप्रिसिएशन कम 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 होते जाएगा तो लाइफ उसकी अपने आप बढ़ जाएगी. सिंपल. सो दिस चेंज इन पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज. किसी का तो कुछ जला, मेरा नहीं जला यहाँ पे वायर नहीं. ओके, सो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हमने पहले भी किए हुए. गोइंग ऑन कंसर्न, बिजनेस आप 1 साल के लिए नहीं कर रहे हो, आप सालों साल के लिए कर रहे हो, बराबर है? सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन द बिजनेस शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बंद करने थे मेरे को, डरने लगे मेरा ही उधर चल गया होगा एक्सटेंशन बोर्ड तो लफड़ा हो जाएगा. कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट मेहनत होनी जरूरी है. प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स रेगुलर बेसिस पे जरूरी है. उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना जरूरी है. अब फ्लक्चुएट करते रहोगे तो लोचा होगा, लोग आपके ऊपर भरोसा ही नहीं रखेंगे. बराबर. अकाउंट्स इनडायरेक्ट बताता है कि आपके बिजनेस ने क्या किया है. सो इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक. कंसिस्टेंसी जरूरी है. एक्रूअल आपने गिना है, पहले वाली वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस है ऑलरेडी, राइट? देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक आप वैल्यू करते हो? हाँ सर करते हैं. कैसे करते हैं? तो देयर आर 2 मेथड. स्टॉक वैल्यूएशन जरूरी है या नहीं? 1 मिनट में जरा देख लूँ आगे क्या है. सम्स के लिए आगे अलग से होगा, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं कवर करता मैं. ठीक है, ठीक है. तो स्टॉक आपका जो होता है उसको वैल्यू करना चाहिए. यस, करना चाहिए. क्यों? कि कुछ भी हुआ, अगर आग लगी, चोरी हुई, कुछ भी हुआ, भूकंप आया, बाढ़ आया, तो मेरा कितना स्टॉक बर्बाद हुआ पता चलना चाहिए. सो दैट्स व्हाट द कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंटरी. नाउ दैट स्टॉक मे बी ऑफ रॉ मटेरियल, दैट स्टॉक मे बी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट स्टॉक मे बी ऑफ फिनिश गुड्स. सर हम लोग तो साइंस वाले हैं, हमें क्या पता चल रहा है ये? ठीक है, साइंस वाले हैं, एमसीवीसी वाले हैं, बराबर है. अभी आप देखोगे तो यहाँ वहाँ गणपति के कारखाने खुले हैं. अब गणपति बनते किससे है? पीओपी से. दैट इज पाउडर, व्हाइट सीमेंट टाइप रहता है, बराबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो दैट बिकम्स माई रॉ मटेरियल. लेकिन वही गणपति के कारखाने आप यहाँ वहाँ जाओगे तो यू विल सी वहाँ पे मुंडी बनी हुई है, हाथ बने हुए हैं, धड़ बना हुआ है, पैर बने हुए. सो इज इट रॉ मटेरियल? नहीं सर, रॉ मटेरियल तो आपने बोला पीओपी है. क्या क्या कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ तो बोलो, इज इट रॉ मटेरियल? नहीं. इज इट फिनिश गुड्स? नहीं, पार्ट है. तो आधा बना माल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. ओके, हाँ, मूर्ति तैयार है वो फिनिश गुड्स, राइट? सो 3 तरह के स्टॉक आपके पास होते हैं. इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल, देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश गुड्स. ओके, तो उसको वैल्यू करने के लिए 2 मेथड है. 3 थी पहले, लेकिन अब एक डिस्कार्ड कर दी है. नाउ वी आर वर्किंग ओनली ऑन 2 मेथड्स, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज. तो एवरेज निकालना है. आपके 7 मार्क के 420 मार्क्स आए 7 सब्जेक्ट के, तो पर सब्जेक्ट कितना हुआ? 60. क्या किया? 420 डिवाइड बाई 7, दैट इज व्हाट एवरेज इज. तो एवरेज प्राइस लगा देंगे. ओके, सो ये अलग अलग मेथड्स है आपके पास. फीचर्स ऑफ AS2, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर स्टॉक इज कंटिन्यूसली मूविंग. आप रोज परचेस करते हो, रोज बेच रहे हो, तो कितने का माल होना चाहिए वो पता चलना चाहिए. उसका वैल्यूएशन कितना है वो पता चलना चाहिए. कुछ आपने ऑर्डर दिया है, आया नहीं है, तो वो माल आपका है क्या?
सोचा है? हाँ, ऑर्डर दिया है, आया नहीं है और आपने पेमेंट कर दी है तो हाँ सर, पेमेंट गया है ना तो अपना है, बराबर। वही आपने माल बेच दिया है, बराबर, और पेमेंट आ गई है तो अब तक माल पहुंचा नहीं है, जब तक पहुंचा नहीं है तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है, यस है, राइट। अगर डैमेज हो गया, कुछ भी हुआ तो हमें उसको रिप्लेस करके देना पड़ेगा। डन। देखो मैंने बाल सीधे कर दिए, अपने वीडियो अनएडिटेड है पापा, एकदम टकाटकी नहीं मिलूंगा मैं, हमेशा मेरा रूप ऐसे ही बदलते रहेगा, राइट। स्टूडियो नहीं, अपन यूट्यूबर नहीं है, टीचर है, टीचर ही रहूंगा मैं तो। एप्लीकेबिलिटी, आप अप्लाई कहाँ करते हो, हर जगह करना पड़ेगा, बराबर। एवरी बिजनेस अपार्ट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री दे विल बी हैविंग सम ऑफ द अदर स्टॉक, है ना। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर वालों के पास भी स्टेशनरी होती है, अगर वो स्टेशनरी का स्टॉक रखते हैं तो बुरा होगा क्या? नहीं, हर महीने मेरे को कितनी पेंसिल लगती है, कितने शार्पनर लगते हैं, कितना स्टेपलर पिन लगता है। स्टेपलर तो आप बार बार नहीं खरीद, लेकिन स्टेपलर पिन आपको लगेगी। पेपर्स कितने लगते हैं, स्केल कितनी लगती है, पेंसिल्स कितनी लगती है, ये जानना जरूरी है, तो उसका स्टॉक भी आप रख सकते हो। सो आइदर ट्रेडिंग कंपनी और सर्विस कंपनी, स्टॉक वैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर एवरीवन। ओके, इट्स एप्लीकेबल एंड इट्स इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज। भले मेरा फेवरेट एग्जांपल वड़ा पाव, फिलहाल उपास चल रहे हैं, इसके वड़ा पाव के एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मन तो नहीं होता, बट देन टू बहुत सारे लोगों के उपास होते तो उनको ये होता है, सर क्यों लालच दे रहे हो, बड़ा अधिक मांस, राइट। तो वड़ा पाव बना किससे, बटाटे से, बटाटा इज द रॉ मटेरियल, बॉइल्ड बटाटा, उसमें मसाला मिक्स किया तो वर्क इन प्रोग्रेस, चने के आटे में डाला, फ्राई किया, निकाला तो फिनिश गुड्स। अब बैठा दिमाग में फिट, परफेक्ट, है ना। खाने पीने की चीज अगर एग्जाम्पल में आ जाए तो आय हाय हाय, बात ही अलग, नहीं वो कंसेप्ट समझने की। हाँ, तो आइटम्स एक्सक्लूडेड अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सोप, तो कौन सी चीजें नहीं है तो आप लोग समझ लेना, ये पढ़ना आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती है, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि आई वांट कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, बराबर। डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट, यस, अपने फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा, असेट साइड पे लिखा, बताना। रेवेन्यू रिकग्निशन, एखादी कंपनी, एखादा बिजनेस रेवेन्यू कमाता है, इनकम कमाता है, हाँ कमाता है, कहाँ से कमाता है? मैं पीयूष राणा एज ए टीचर, बराबर है, क्लासेस में मेरे बच्चों को ले रहा हूँ, उनसे अगर फीस आई तो मेरे बिजनेस की इनकम होगी या नहीं होगी? एज ए टीचर होगी। लेकिन मैंने आप लोग को आयुर्वेदिक दवाई दी, उसका पैसा लिया, तो मेरी इनकम है लेकिन मेरे बिजनेस की, आशीर्वाद क्लासेस की नहीं, राइट। मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, मैंने आपकी कुंडली भी देख ली, आपको रेमेडीज भी दे दी, उसका मैंने 15-20-21 हज़ार ले लिया, तो एस्ट्रोलॉजी का इनकम है, वो मेरे क्लासेस का इनकम नहीं है, मेरा इनकम है। बट सी द सोर्स ऑफ इनकम मैटर्स, द नेचर ऑफ बिजनेस मैटर्स, राइट। चरस गांजा बेच के अगर पैसा कमा रहा हूँ तो इलीगली है ना सर, क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी सिखाते हो हमें, बट तो सी इलीगल इनकम्स आर नॉट योर इनकम्स, दे आर क्राइम। You're earning money, but the nature is different, the purpose is different, the coverage is different. So you have to know those things. बराबर? कोई हाथ देखने वाला है क्या? देख लो भैया. Okay? The ICA issued accounting standards on revenue recognition in November 85. This has been made mandatory with the effect of 1st April 91. This account standard deals with the various bases to be adopted in accounting and revenue and profit and loss account of an enterprise. This type of revenue dealt with the standard are revenue from sale of goods, yes, माल बेच के पैसा कमाया कमाया, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, yes, यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर यील्डिंग इंटरेस्ट, मैंने मेरा जगह भाड़े पे दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। रॉयल्टीज डिविडेंड, मैंने मेरा ऑटोबायोग्राफी लिख दिया और पब्लिशर को दे दिया, तू छाप, हर कॉपी के पीछे वो मुझे पैसा दे रहा है रॉयल्टी का, नो प्रॉब्लम। शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड कमा रहा हूँ, चलेगा। This standard lays the following provisions regarding the timing of revenue recognition. Revenue from sale transaction should be recognized when the following conditions have been fulfilled. बड़ा, तो माल बेच के कमाया, कमाया ऐसा कब बोल सकते हो? The property or the ownership in the goods has been passed fully to the from the seller to the buyer.
नो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, पैसा मिलने वाला है इसकी गारंटी होनी चाहिए, बराबर है। In transaction involving the rendering of services, performance should be measured either under completed service contract method or percentage complete method, बराबर है। ये आप लोग सीखोगे आगे जाके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर होगा तो डोंट वरी। In the above case, the revenue should be recognized provided it is reasonable to expect collection, otherwise revenue recognition should be postponed. In other case, revenue should be recognized as follows. तो इंटरेस्ट बंदा कमाता है, हाँ कमाता है, कब कमाता है? जगह भाड़े पे देकर, पैसा उधार देकर, बराबर है। रॉयल्टीज बंदा कमाता है, कब कमाता है? जब खुद कुछ बनाता है लेकिन कमा उसके ऊपर कोई और रहा है, तो आपको अपने ओरिजिनल वर्क का पैसा मिलते जाएगा। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट्स है, रॉयल्टीज है, ये सब आ जाते हैं आईपीआर के अंडर। ओके, क्या है वो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेयर्स, नो प्रॉब्लम, पर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड कौन सी चीजें रेवेन्यू में नहीं आती? रियलाइज कैपिटल गुड्स अराइजिंग आउट ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट पे बेचा तो आपका रेवेन्यू नहीं है। अनरियलाइज होल्डिंग गेन्स इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, दैट इज इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। Natural increase in the herds of livestock and agriculture and forest products, right? Realized या unrealized gain arising out of fluctuation of foreign exchange rate. Okay, sale of goods, माल बेचा, totally buyer के पास पहुंचना जरूरी है। ओके, रेंडरिंग सर्विस, मैं तेरे को सिखा देगा तो मेरे को 1 लाख रुपया दे, 1 लाख दे दिया लेकिन सिखाया नहीं तो मेरी इनकम है क्या वो? नहीं, आई हैव टू पे बैक। हाँ, लेकिन सिखा दिया, मैंने पासिंग का गारंटी नहीं दिया था। फेल हुआ तो यू कैन नॉट क्लेम, मैंने कहा बोला था मैं सिखाएगा, सिखा दिया, खत्म बात, राइट। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, proportionate completion method, right? Then effects of uncertainties, yes, there are uncertain events in the market and that may affect your revenue. Disclosure, whatever income you have earned from whatever sources, you need to disclose them in your financial statements. In your reports you have to mention the reason and source of such incomes. Okay, I hope I am clear to you all up till now. Yes, पढ़ते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर बेसिस पे, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। 2 उंगली के एक्सरसाइज आप कर सकते हो वीडियो देखकर कमेंट मारने का, 1 उंगली का एक्सरसाइज आप कर सकते हो लाइक करके, शेयर करके, मोबाइल पे देख रहे हो तो हाइप करके, सुपर थैंक्स वगैरह कुछ एक्टिवेट करके, राइट, सो दैट अपना चैनल कमाएगा, अपन चैनल को और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत समाज सेवा कर लेंगे और फिर अगर कुछ बचा तो खुद के लिए भी खर्चा कर लेंगे, भैया क्या फर्क पड़ता है। चलो टाटा।